Welcome everybody to this new lecture of our paper number 3rd, Waves, Oscillation and Acoustics. And in today's lecture we will discuss about the final application of Fourier series or Fourier theorem, and this is about triangular wave. When a triangular wave moves in a medium, how can we analyze this wave by the help of Fourier theorem? And this is illustrated here. And this is a triangular wave of which description is here. Okay, so let's start it. And this is the triangular wave. The triangular wave is defined as this. These are the conditions. Phi displacement is 0 at time t equal to 0. You can look here. You can look at here that when time t, this is my time scale, this is my time scale, as you can say it as the axis of x, and at axis of y I take the displacement of the wave. Okay, so condition is that displacement of the wave is 0 at time equals to 0, time t equals to 0. Okay, and displacement of the wave is equals to its amplitude. The displacement of the wave is equals to the amplitude or maximum displacement of the wave when time t is equals to half this. At this time, this is the maximum displacement of the wave. This is the maximum displacement of the wave and is equal to a. This is equals to a. Okay, and displacement is again 0 at time t equals to t. This, at this time the displacement of the wave is again 0. Okay, so this type of wave structure, is known as triangular wave. And when this type of wave is travel into the medium, the analysis by the Fourier theorem is illustrated here. Okay, so these are the conditions by which this wave is travel through the medium. And here we are interested into the analysis of wave by the application of Fourier theorem. Okay, where t is the time period of the wave, and this is the complete cycle, one complete cycle of the wave. The displacement is 0 at time t equal to 0. Displacement is maximum and is equals to a at time t equals to half. That is, this is the half cycle of the wave, and at time t equals to capital T, that is at one time period, again the displacement of the wave becomes 0. Okay, so consider at a point, any point P, this point P, whose coordinate is defined as ty. Okay, t is the time axis, y is the displacement axis. So this, the coordinate of the of this point will become t and y. Okay, between time 0 and ty2, ये जो पॉइंट हमने चूज किया है ये इस टाइम इंटरवल के बीच में चूज किया है, 0 से t/2 के बीच में. यहाँ कोई पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट है t एंड y. नाउ इन द सिमिलर ट्रायंगुलर OPT, look at here, OPT, and in the triangle OAN, this. These are two similar triangles. First triangle is OPT and second triangle is OAN. These are two triangles, and as we do in the case of as we do before in the case of sawtooth wave, or in the analysis of sawtooth wave, similarly we equate here or the ratio, to find the ratio of the equal arms of these two triangles. The triangle is OPT and OAN. This is the second triangle. Okay, so displacement over displacement, this arm is equals to this arm. This is the long of the triangle OPT, that is PT. And what is the long of this triangle OAN? The long of this triangle is AN. This is the long of the triangle. So long over long, simply. So the long of this triangle is equal to this displacement OY,
and this is equals to pt. So long of this triangle is y, and long of this triangle OAN is a. So long over long, and here is a over t by 2. Okay, not a over t by 2, it's t over t by 2. It's t over capital small t over t by 2. Okay, here what is t? This time that is the base of this triangle. And what is the base of this triangle? The base of triangle OPT is OT, that is time taking by the wave to travel this distance is t, because this is a time axis, and the time taken by the wave to to travel this distance is t by 2, because this is the time axis. So time over time, or you can say it base over base. So base over base is t over t by 2. So if I want to calculate from here the displacement of the wave, then the displacement of the wave is given by y equals to 2at cross multiply y equals to 2at by capital T. This is my displacement for the wave for any time t, any arbitrary time t. This is the displacement of the wave. Okay, and similarly we can calculate the displacement between time t by 2 to t. Okay, so the time between this time interval, the displacement will be y equals to 2a t minus t, 2a t minus t. Okay, this, because this is the time axis, t minus t, this time minus this time. Okay, so the displacement between these two waves is y equals to 2a minus t by 2. Hence the triangular wave defined as this wave can be defined as that displacement of the wave will become 2a small t by capital T for the time interval 0 to t by 2, and the displacement of the wave will become 2a t minus t over capital T for the time interval t by 2 to t. This is the definition, or we can define the triangular wave by this equation, and we use this equation for these two different time intervals. When we use the time interval 0 to t by 2, we use this displacement, and when we use the time interval t by 2 to t, we frequently use this time interval this displacement y equals to 2a t minus t over t. Okay, this is my Fourier series. We have three constant here, or coefficient here, a naught, an, and bn, and we have to calculate the value of these three coefficient. Okay, so let's do this. So evaluation of the coefficients. Okay, so evaluation of the coefficient. First we have to evaluate the coefficient a naught, the value of a naught, and it is given by 1 over t integration 0 to t y dt, because my interval is divided into two parts. First is 0 to t by 2, that is the first half cycle, and this is the second half cycle. I am not give these cycle as the name of positive half cycle or negative. I called it as first half cycle, second half cycle, because there is no portion of the wave below the positive y-axis, or below the positive part, positive half cycle. So I called it as first half cycle, second half cycle, and the displacement of the wave is this. So my time interval from 0 to t is divided between these two displacements, y equals to 2a t by t, and y equals to 2a t minus t over capital T. This. So if we want to calculate the coefficient a naught and the
coefficient a naught is given by this formula 1 over t 0 to t y to t to. So we have to intersect this time interval between two time intervals 0 to t by 2 and t by 2 t. So this 1 over t is same, integration 0 to t by 2 y dt plus integration t by 2 to t by 2 to t y dt. This. Okay, and I know what is the displacement between this time interval 0 to t by 2. The displacement is given by this equation, y equals to 2at by t. The displacement is given by this equation between this time interval 0 to t by 2, and displacement is given by this equation between the time interval t by 2 to t. Okay, so this. So put the value of y here for the time interval 0 to t by 2 and the time interval t by 2 to t. This is the value of y and dt. That is the integration with respect to t. Okay, and if you see it that if you see it when we put the value of y, okay, then you can see here that 2a by t, that is this value 2a by t is constant. So out of the integration 1 by t is already there, and integration of small t with respect to t gives you t square by 2. Okay, and integration between the limits 0 to t by 2. Similarly here you can say it as 2a by t is constant here, so 2a by t is out of the integration, and integration is this function t minus t with respect to t, small t, and between the limits t by 2 to t. So the integration of t minus t, this quantity is t capital T small t minus integration of this quantity t is t square by 2. Okay, and limits is t by 2 to t. Limits is this. Okay. When you can see this expression, that 2a by t is common from here. 2a by t, 2a by t, ये दोनों आप देख रहे हैं कांस्टेंट फैक्टर्स हैं. तो जब ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं तो इस इंटीग्रेशन से इस ब्रैकेटेड क्वांटिटी से ये ब्रैकेटेड टर्म से ये बाहर आ जाएंगे. जब 2a by t आप कॉमन लेंगे तो 1 by t यहाँ ऑलरेडी है, तो 2a by t अंदर से कॉमन आएगा तो ये जो टर्म बनेगी ये बनेगी 2a by t स्क्वायर, 2a by t स्क्वायर. और यहाँ जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 यहाँ ऑलरेडी है, और t by 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा t स्क्वायर बाई 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स यू 8. So the upper limit gives you t square by 8. और जब आप लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट आपके पास 0 है तो ये टर्म हो जाएगी 0. तो जो अपर लिमिट है जब आप उसे पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी t स्क्वायर बाई 8. ओके, और इस टर्म में चूंकि 2a by t तो हमने कॉमन बाहर ले चुके हैं, हमारे पास बची है टर्म ये आफ्टर द इंटीग्रेशन, क्योंकि t dt का इंटीग्रेशन होगा तो आपको टर्म मिलेगी t स्मॉल t, और t का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो आपको टर्म मिलेगी t स्क्वायर बाई 2. और लिमिट हमें पुट करनी है t by 2 टू t, यानी पहले अपर लिमिट पुट करेंगे स्मॉल t की जगह और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे स्मॉल t की जगह. अपर लिमिट t है और लोअर लिमिट t by 2 है, तो दोनों लिमिट हम पुट कर रहे हैं. तो जब आप अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये टर्म बनती है t स्क्वायर, because t and multiply by t in place of this small t, so t square. और जब स्मॉल t की जगह फिर से आप कैपिटल T पुट करते हैं तो ये टर्म बनती है t स्क्वायर बाई 2. दैट इज दिस टर्म विल बी t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर बाई 2. ओके, एंड बिकॉज ऑफ लोअर लिमिट दिस माइनस साइन इज कम हियर. ओके, और जब आप लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो लोअर लिमिट इस बार t बाई 2 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म बनेगी t स्क्वायर बाई 2, माइनस साइन आएगा ये,
और जब लोअर लिमिट आप यहाँ पुट करेंगे तो t/2 पुट करेंगे t की जगह, तो आपको मिलेगा t²/4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, सो गिव्स यू t²/8। और जब इस टर्म को आप सोल्व करते हैं t²/8 एज इट इज, ये टर्म आपको देगा t²/2 माइनस साइन, और इस टर्म का सोल्यूशन आपको देगा 3t²/8। ओके, इन दोनों को आप सोल्व करते हो तो आपको मिलेगा 2a/t², सेम है ब्रैकेट के बाहर, t²/2 है, और यहाँ से जब आप t²/8 और माइनस 3t²/8 है, उसका रिजल्ट आएगा 2t²/8। 2 से 8 कैंसिल हो गया, आपके पास 4 आया, ये टर्म बनी आपके पास t²/4। 2a/t² एज इट इज कॉमन है, t²/2 सेम, माइनस t²/4 ये टर्म बन गई। तो जब एलसीएम आप लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, जो टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, इस कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी ए नोट की, इसका कोफिशिएंट ए नोट की जो वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वो आएगी a/2। ओके, अब जब हमारे पास ये, इसका मतलब जो ट्रायंगुलर वेव है उसमें जो कोफिशिएंट ए नोट है वो सस्टेन करता है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विल सस्टेन। अब हम कोफिशिएंट ए एन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और कोफिशिएंट ए एन आप जानते हैं कोसाइन सीरीज के साथ आता है। कोसाइन सीरीज हमें देता है और फॉर्मूला कुछ इस तरह का हम पढ़ के आते हैं, दैट 2/t लिमिट्स 0 to t y cos n ओमेगा t dt, इस तरह। और y का जो वैल्यूज है वो ट्रायंगुलर वेव के लिए कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि ये जो इंटरवल है हमारे पास 0 to t/2, इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव है वो ये है, और जो इंटरवल है हमारे पास t/2 to t, उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से डिफाइंड है। ओके, तो यहाँ से फिर हम ए एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे बी एन के लिए। तो वही हम जो ऊपर हम काम करके आए हैं वही हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। 2/t सेम है, इंटीग्रेशन से बाहर है, 0 to t/2, इस ये जो लिमिट है 0 to t, इसको हम दो भागों में तोड़ रहे हैं। एक हमने अपना लिमिट बनाया 0 to t/2 हाफ साइकिल के लिए, यानी फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, और ये जो लिमिट का इंटीग्रेशन है ये है सेकंड हाफ साइकिल के लिए। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जब आप ये लिमिट्स यूज करते हैं तो 0 to t/2 सेम है, जो लिमिट्स का इंटीग्रेशन है, y cos n ओमेगा t dt सेम है, प्लस t/2 y cos n ओमेगा t। अब जो यहाँ y की वैल्यू आएगी इस इंटरवल के लिए वो अलग आएगी और इस इंटरवल के लिए वो अलग आएगी, जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया है। जब आप इंटरवल यूज करेंगे 0 to t/2 तो आप y का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से यूज करेंगे, और जब आप इंटरवल यूज करेंगे t/2 to t, जो इंटरवल है डिस्प्लेसमेंट का वो आप ये यूज करेंगे। इस इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट ये यूज करेंगे और इस इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट ये यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स सी इट। यहाँ से आप जब 0 to t/2 वाले टर्म को कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 2a स्मॉल t बाई कैपिटल T, और जब इंटरवल को यूज करें आप t/2 तो डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू आएगी 2a कैपिटल T माइनस स्मॉल t ओवर कैपिटल T। ओके, एंड इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। ओके, अब फिर से मैं वही यहाँ प्रोसीज कर रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि 2a/t यहाँ से भी कॉमन इस टर्म से, और 2a/t इस टर्म से भी कॉमन है। तो 2a/t हमने कॉमन ले लिया, और जो टर्म इसके बाद हमें बची वो बची 0 to t/2 t cos n ओमेगा t dt प्लस t/2, और यहाँ जो टर्म बचेगी, चूंकि 2a/t तो कॉमन चला गया, यहाँ बचेगी हमारे पास टर्म t कैपिटल T माइनस स्मॉल t cos n ओमेगा t dt, कैपिटल T माइनस स्मॉल t cos n ओमेगा t dt। ओके, ऑन सॉल्विंग दीज इंटीग्रेशंस, चूंकि इस तरह के इंटीग्रेशन हमने सॉटूथ वेव में सॉल्व कर लिए हैं। ओके, तो उसी प्रोसीजर को आप यहाँ भी दोहराएंगे, इसको फर्स्ट इंटीग्रेशन कहेंगे, इसको सेकंड इंटीग्रेशन कहेंगे, और फिर जो इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला है ft gt dt वाला, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। और वो वाला फॉर्मूला जब आप, जैसे हमने सॉटूथ वेव के केस में, अगर आपने इससे पहले सॉटूथ वेव आपने एनालिसिस नहीं किया है तो पहले उसे देख लें, उसके बाद ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आ जाएंगे।
ओके, यहाँ आपको वही दो जो फंक्शन है टी के जो फंक्शन है वो इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, एफ टी जी टी डी टी, यहाँ से आप सोल्व करेंगे। और t के साथ जब कोसाइन ओमेगा t की वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो t तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, चूंकि हम जो इंटीग्रेशन यहाँ कर रहे हैं वो स्मॉल t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो कैपिटल T है वो यहाँ एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, केवल इंटीग्रेशन होगा कोस एन ओमेगा टी का। ओके, और जब माइनस टी के साथ कोस एन ओमेगा टी की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ इंटीग्रेशन जो बनेगा वो बनेगा टी कोस एन ओमेगा टी। हालांकि ये इंटीग्रेशन एक जैसा है, ये भी टी कोस एन ओमेगा टी है और पॉजिटिव है, ये निगेटिव के साथ आएगा टी कोस एन ओमेगा टी, लेकिन लिमिट्स डिफरेंट हैं। जिस लिमिट्स के बीच में आप इन फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे वो डिफरेंट है, इसीलिए ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो इसको आपको अलग सोल्व करना पड़ेगा, इसको आपको अलग सोल्व करना पड़ेगा। और जो एक तीसरा फंक्शन यहाँ से मिलेगा, दैट व्हेन कैपिटल टी इज मल्टीप्लाइड बाय कोस एन ओमेगा टी, ये वाला जो फंक्शन आपको मिलेगा इसमें कैपिटल टी चूंकि एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो केवल आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कोस एन ओमेगा टी का। तो यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एफ टी जी टी डी टी वाला, यहाँ आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टी आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन से, कैपिटल टी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और फिर से आपको टी मल्टीप्लाइड बाय कोस एन ओमेगा टी, यहाँ फिर से आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो एफ टी जी टी डी टी, जो इंटीग्रेशन में जो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला है, व्हेन द टू फंक्शंस you can say it as fx gx dx, ओके, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब उस तरह के इंटीग्रेशन को आप सोल्व करते हैं, इन तीनों इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, तो जो फाइनल टर्म आपके साथ बनेगी वो ये बनेगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात अगर मैं करूं तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं लिख के आएंगे, क्योंकि ये काम मैं आपको करा चुका हूं सॉटूथ वेव का। अब मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये सॉटूथ वेव को जो हमने सॉल्व किया था, जिसने इससे पहली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वाली वीडियो देखे, सॉटूथ वेव का जब एनालिसिस हमने किया था वहां देखिए इस तरह के इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किए हैं, टी कोस एन ओमेगा टी, ये एग्जैक्ट इंटीग्रेशन है, लेकिन लिमिट्स डिफरेंट है। लिमिट्स यहाँ 0 to t है, और वहाँ जो हमारे पास इंटीग्रेशन के लिमिट्स हैं वो 0 to t/2 है और t/2 से t है, इसलिए डायरेक्ट इस रिजल्ट को हम यहाँ से यूज नहीं कर सकते, लिमिट्स का केवल अंतर है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इस तरह के इंटीग्रेशंस को सोल्व करते हैं। आप देख रहे होंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इज दिस, सेकंड फंक्शन इज दिस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड गिव्स यू sin n ओमेगा t ओवर n ओमेगा, माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो आपको देगा 1, क्योंकि d/dt ऑफ t गिव्स यू 1। और cos n ओमेगा t का इंटीग्रेशन आपने यहाँ देख ही लिया है, sin n ओमेगा t ओवर n ओमेगा dt आएगा, और इसका इंटीग्रेशन फिर से आपको करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन एंड दैट इंटीग्रेशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये वाला फंक्शन आप यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस तरह के इंटीग्रेशंस को आप सोल्व कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी इंटीग्रेशंस हैं उन सब को आप सोल्व कर सकते हैं। तो जब इन सब इंटीग्रेशंस को आप सोल्व करते हैं, जो फाइनल an की वैल्यू मिलती है हमें, एग्जामिनेशन में जब आप इसे करेंगे तो पूरी तरह से आप सोल्व करके दिखाएंगे। ओके, यहाँ हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस हैं, उसके कारण हम ये वर्क आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। जब आप इन इंटीग्रेशंस को सोल्व करते हैं, चूंकि ये वर्क हम पहले करा चुके हैं, केवल टाइम का जो लिमिट्स हैं, टाइम की जो लिमिट्स हैं वो डिफरेंट है, बाकी इंटीग्रेशन के प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप अगर सॉटूथ वेव वाला वीडियो आपने नहीं देखा है पहले, तो कृपया पहले सॉटूथ वेव का वीडियो देखें, और इसके बाद ट्रायंगुलर वेव को जब एनालिसिस करेंगे तो आपको आसानी होगी। ओके, सो जब इन इंटीग्रेशंस को आप सोल्व कर लेते हैं तो जो an की वैल्यू आती है वो आती है 4a/t², 2/n² ओमेगा स्क्वायर कोस n पाई -1। ओके, और कोस n पाई की वैल्यू जो है वो हम जानते हैं -1n होती है। तो जब इस वैल्यू को कोस n पाई की ये वैल्यू -1n यहाँ हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो -1n एंड -1। ओके,
4a/t² सेम, 4a/t² सेम, ओके। और यहाँ हम जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो ओमेगा की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो ओमेगा की जो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं 2π/t, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। सो 4a/t² इंटू 2/n², 2π/t होल स्क्वायर, -1 टू द पावर n -1, ओके। जब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह का आएगा, दैट an की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2a/n² π² एंड -1 टू द पावर n इक्वल्स टू 0, ओके। ये टर्म हमें 0 वैल्यू देगी फॉर ऑल इवन वैल्यूज। कैसे? आप यहाँ वैल्यू 2 रख के देखिए, n की वैल्यू 2 जब आप पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू आपको देगा वो देगा -1 टू द पावर 2, यानी -1 का स्क्वायर आपको देगा +1, और +1 और -1 को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0। 4 रख के देखिए, -1 टू द पावर 4, दैट मीन्स ये फिर से पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, और -1 होगा तो ये फिर से आपको 0 दे देगा। यानी फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n, this function an will always be 0. For this function is survived for odd values of n. odd values of n के लिए जो यहाँ वैल्यू आएगी an की, वो आएगी -4a/n² π²। कैसे? देखिए, -1 की वैल्यू n की वैल्यू को आप ओड पुट करके देखिए। ओड यानी 1, 3, 5, 7 विषम संख्या जितनी भी हैं, विषम संख्या आप रखिए, n का नंबर विषम रखिए, यानी विषम कितनी संख्या? 1 रख के देखिए, 1 n की जगह 1 रख के देखिए। -1 टू द पावर 1 gives you -1, and -1 gives you -2, when -2 is multiplied by 2 gives you -4. That's why numerator of this function an is -4a by same denominator n² by π², ओके। तो ओड वैल्यूज ऑफ n, ओड वैल्यूज, और याद रखिएगा जब आप n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी पुट करना है, पर यहाँ वाली वैल्यूज इस फंक्शन को इफेक्ट नहीं कर रही, इसलिए हमने उसका जिक्र यहाँ नहीं किया। ये दो पॉसिबल वैल्यूज है, 0 का तो से हमें मतलब नहीं, 0 तो हमें कुछ नहीं देगा, हमें यूज करनी है ये वाली वैल्यू -4a/n² π², ओके। तो इस तरह से जो an है उसकी वैल्यू ये सर्वाइव करती है फॉर ओड वैल्यूज ऑफ n, okay. Thus the odd harmonics are present in the cosine series of Fourier series, okay. जो cosine series हम an की पढ़ के आए हैं उसमें केवल जो odd values of n हैं वो सर्वाइव करती हैं, बाकी सब 0 हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा जो अगला कोफिशिएंट है जिसको हम bn कहते हैं, उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो bn की वैल्यू, bn, the coefficient bn is given by this formula 2/t integration 0 to t y sin n omega t dt। फिर से हम इस इंटीग्रेशन को दो भागों में तोड़ लेंगे, 0 to t/2 और t/2 से t, और करस्पॉन्डिंगली हम y की वैल्यू वहां पुट करेंगे। तो y की वैल्यू जब पुट हम यहाँ करेंगे तो 2a/t जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो है फॉर द इंटरवल 0 to t/2, और 2a कैपिटल T माइनस स्मॉल t ओवर कैपिटल T, ये जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ये है इस इंटरवल के लिए t/2 to t and dt, ओके। 4a/t, यहाँ देखिए आप फिर से 2a/t कॉमन है, 2a/t कॉमन है, इंटीग्रेशन से बाहर आया, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये जो टर्म बाहर बनी ये बना 4a/t² बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2a/t। यहाँ जो टर्म बचती है इंटीग्रेशन में 0 to t/2 के बीच में वो बचती है t sin n omega t dt, ये टर्म बचती है। और यहाँ जब आप कैपिटल T से मल्टीप्लाई करेंगे sin n omega t, क्योंकि कैपिटल T एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो स्मॉल t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कैपिटल T आएगा इंटीग्रेशन से बाहर बिकॉज ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो हैं t/2 to t, और जो इंटीग्रेशन हमें करना है इस फंक्शन का करना है sin n omega t dt, ओके। माइनस साइन बिकॉज ऑफ दिस माइनस, लिमिट्स t/2 to t सेम, एंड when small t is multiplied by sin n omega t gives you t sin n omega t dt, this function, this। और फिर से हम
वही यहाँ काम करेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, इसका यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ फिर से हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व करते हैं, और जो आपको एग्जामिनेशन में सोल्व करके भी दिखाना पड़ेगा, तो जो आपको वैल्यू मिलती है bn की वो 0 मिलती है। यानी फॉर द होल कैलकुलेशन हम ये कह सकते हैं कि हमें जो यहाँ वैल्यूज मिली हैं वो a0 सर्वाइव करता है जो है a/2 के इक्वल, an सर्वाइव करता है जो है इन डिपेंडेंट क्वांटिटीज के ऊपर, और bn की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। bn की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि फूरियर सीरीज में जो साइन वाली टर्म्स हैं, जो साइन वाली टर्म्स हैं वो सब के सब 0 हो जाती हैं। यानी साइन सीरीज फ्रॉम द फूरियर सीरीज इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड, okay. So all the sine terms in the Fourier series will be 0 because bn equal to 0. bn equal to 0, that means b10, b20, b30, b40, and all the terms comes into the sine series. b1 0, that's why this term 0, b2 0, that's why this term 0, bn 0, that's why this term. So all the sine terms in the Fourier series will become 0. Okay. So this is the result from the analysis of triangular wave. Okay. And now we have the values of all three coefficients a0, an, and bn, and now put these all three values in the Fourier series. We have yt, which is a function of t, is given by a/2, which is the value of a0, minus 4a by pi square, summation n equals to 135, because odd values are survived. Okay, these values are written because only odd values, for odd values of n, an is survived. Okay, so this a/2 minus 4a by pi square, summation n equals to have only odd values, and if you put n equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, then for even values of n, an will become 0. So that's why this is written in this form, 1 by n square and multiplied by the cosine series, cosine n omega t, and plus bn because 0. Okay, so yt is a/2 minus 4a by pi square, and put the value of n equals to 1. You have cos n omega t. So here is cos omega t, not n omega t. Here is cos omega t, 1 by 3 square because of n square, cos 3 omega t, 1 by 5 square because of n equals to 5, cos 5 omega t, and so on. Okay, so clearly the axis of the triangular wave is a/2 above the t-axis. Okay, and frequencies of the harmonics in the ratio of 1, 3, 5. Why? Because here value of n 1, here value of n 3, here value of n 5. So frequencies are in the ratio of 1:3:5 and up to 2, and amplitudes are in the ratio of 1, because of here 1 by 3 square, here 1 by 5 square, here. Okay, so in the case of triangular wave, the frequencies of the harmonics is in the ratio of 1:3:5, and the amplitudes are in the ratio of 1:3 square, 5 square, and so on. Okay, so these are the analysis of a triangular wave by the application of Fourier theorem, and we have studied here 3 applications of Fourier theorem. The first is the square wave analysis, second is the sawtooth wave analysis, and third is the triangular wave analysis. Okay,
These are all about the Fourier theorem. Okay, and now come to our next topic, which is the last topic of this unit, and which is about the wave velocity and group velocity. Wave velocity and group velocity. Okay, what is wave velocity? First we defined the wave velocity, then we defined the group velocity, and finally we have to establish a relation between the wave velocity and group velocity, and finally we have completed here our unit number first of our syllabus, that is the syllabus of paper number 3rd, waves, oscillations and mechanics. Okay, waves, oscillation and acoustics. Okay, so this is wave velocity and वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं, फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं. वेव वेलोसिटी को क्यों बोलते हैं अभी क्लियर हो जाएगा. तो वेव वेलोसिटी को पहले डिफाइन कर रहे हैं और फिर हम ग्रुप वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे और उसके बाद दोनों के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे. सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन वेव वेलोसिटी. ओके, व्हेन ए सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव, ये वर्ड आपके सामने बहुत बार आ चुका होगा. मोनोक्रोमेटिक, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स कलर, यानी एक कलर की वेव. कलर इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ. तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते कि एक वेवलेंथ की वेव, एंड वेवलेंथ इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ v equals to n lambda. So you can say it as the wave of single frequency. So wave of single color, wave of single wavelength, wave of single frequency. These are all waves are called as monochromatic waves. And this word comes from the optics, prakashiki. Okay. When a single monochromatic wave, a wave of single frequency or single wavelength, travels through a medium, its velocity of advancement in the medium, its velocity of advancement, क्योंकि वेव ट्रेवल करेगी तो जो एडवांसमेंट होगा उस वेव का मीडियम में, दैट कॉल्ड द वेव वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल, a plain monochromatic wave, this wave is traveling around the positive x direction and is given by this equation. ये वेव हम पढ़ के आए हैं पहले. इस वेव वाली यूनिट में हमने इस वेव को एनालिसिस किया है. ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव मोनोक्रोमेटिक वेव की इक्वेशन है. तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. और जो यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज यूज की हैं वो अपनी यूजुअल मीनिंग्स रखते हैं. जैसे यहाँ जो a है, स्मॉल a है, वो वेव का एम्पलीट्यूड है. जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वेव की. जो k है वो 2 पाई बाई लैम्डा के इक्वल है. और जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वेव का, जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वेव का. ओके, सो बाय डेफिनेशन द रेशो ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा and the propagation constant k is known as the wave velocity v. V is the ratio of the angular frequency omega and the wave vector or propagation constant k. This ratio omega over k is known as the wave velocity. Is known as the wave velocity, and this comes from this equation. Okay, where omega t minus kx, this quantity omega t minus kx is the phase of the wave motion, is the phase of the wave. Okay, simply, therefore the planes of constant phase wavefronts are defined as omega t minus kx. ये constant रहना चाहिए. जो constant phase के wavefronts हैं उनके लिए अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये मुझे क्या देगी. यहाँ से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा टी वाले फंक्शन को, तो चूंकि टी का डिफरेंशिएशन होगा और ओमेगा एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, सो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी विल गिव्स यू ओमेगा माइनस इज एज इट इज. एंड व्हेन यू डिफरेंशिएट के एक्स एंड के बिहेव्स एज अ कांस्टेंट, then because k is 2 pi by lambda and lambda is not varied because this is a single monochromatic wave, lambda is constant, so k
is dependent on 2 pi over lambda. 2 pi is already constant, and because of monochromatic wave, lambda is constant. So why k is constant? So k is constant. Okay, and differentiating of this quantity with respect to t gives you dx by dt equals to 0. So this equation, when you differentiate this equation with respect to t, gives you omega minus k dx by dt, and in the right hand side you will get 0 because of differentiation of a constant with respect to t gives you 0. And dx by dt is equals to omega over k. Dx by dt will gives you omega over k, which is the wave velocity. Okay, thus the wave velocity is the velocity with which planes of constant phase advance through the medium. I repeat it. Thus the wave velocity is the velocity with which planes of constant phase advance through the medium. Hence the wave velocity is also called phase velocity. ये वर्ड इसलिए यूज किया जाता है, ये वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वेव वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी क्यों कहते हैं, वो इस कारण कहते हैं क्योंकि जो वेव वेलोसिटी है वो उन प्लेन्स का एडवांसमेंट भी है जो कांस्टेंट फेज के साथ मूव करते हैं, उन प्लेन्स का भी एडवांसमेंट है, इसीलिए हम वेव वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी भी कहते हैं, फेज वेलोसिटी भी कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी की। ग्रुप वेलोसिटी की बात हम कर लेते हैं और फिर एक रिलेशन यहाँ हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं ग्रुप वेलोसिटी में और वेव वेलोसिटी में। ओके, सो ग्रुप वेलोसिटी इन प्रैक्टिस वी कम अक्रॉस पल्सेस रेदर देन मोनोक्रोमेटिक वेव्स। ओके, बहुत सारी पल्सेस हमारे पास होती हैं। मोनोक्रोमेटिक वेव एक सिंगल वेव की किसी सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव को कंसीडर करना, उसे एनालिसिस करना हालांकि आसान है, पर प्रैक्टिस में मोनोक्रोमेटिक वेव का मिलना इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिस में हमें पल्सेस मिलती है जो मिक्सअप होती हैं बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की वेव्स की। सो इन प्रैक्टिस we come across the pulses rather than monochromatic waves. Okay, so a pulse consists of a number of waves traveling slightly from one another in frequency. Okay, a superposition of these waves is called as a wave packet or a wave group. जब उन वेव्स का हम सुपरपोजिशन देखते हैं, जैसे सुपरपोजिशन की फिनोमिना आप इंटरफेरेंस में भी पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस की फिनोमिना सुपरपोजिशन की फिनोमिना ही तो है। दो वेव एक साथ एक ही मीडियम में एक ही दिशा में एक साथ भेजी जाती हैं तो मीडियम के कुछ पॉइंट्स पर वो एक ही फेज में मिलती हैं, मीडियम के दूसरे पॉइंट्स पर वो आउट ऑफ फेज मिलती हैं। जिन पॉइंट्स पर वो एक ही फेज में मिलती हैं उन पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जिन पॉइंट्स पर वो अपोजिट फेज में मिलती हैं उन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इंटरफेरेंस की जो फिनोमिना है एक्चुअली क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विच हैव सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, सेम एम्पलीट्यूड and a slightly different frequency. Okay, so this superposition of the wave is called as wave group. When a such group travels in a dispersive medium, dispersive medium कौन से medium होते हैं, जिनमें dispersive effects होते हैं, है ना, जिनमें frictional force वर्क करता है, जिनमें damping force वर्क करता है, जिनमें वेट या फिर दूसरे जो और तरह के रिस्टोरिंग फोर्स आप कह सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, यदि जिनमें डिस्पर्सिव इफेक्ट्स मौजूद हो, जहां वेव की एनर्जी का लॉस होता है बाय ट्रैवलिंग, ऐसे मीडियम को हम कहते हैं डिस्पर्सिव में, जिसमें डिसिपेटिव इफेक्ट्स हों, वेलोसिटी एनर्जी वेलोसिटी ऑफ द वेव डिक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीडियम आर कॉल्ड एज dispersive medium. That mediums are called as dispersive medium, जिनमें dispersive effect हो, जो वेव की ऊर्जा को, उसकी गति को, उसकी वेग को कम करें, ऐसे मीडियम को हम डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। तो जब इस तरह का ग्रुप जो पल्सेस से बना है, ना कि मोनोक्रोमेटिक वेव से, पल्सेस आप कह सकते हैं एक ऐसे
ग्रुप है वेव्स का जो एक दूसरे के साथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ग्रुप वेव हैं। ऐसे ग्रुप को हम पल्सेस कहते हैं। और जब इस तरह की पल्सेस, इस तरह के वेव ग्रुप किसी डिस्पर्सिव मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो देखिए क्या होता है, द प्लेन वेलोसिटीज ऑफ इट्स डिफरेंट कंपोनेंट आर डिफरेंट। The observed velocity is, however, the velocity with which maximum amplitude of the group advance in the medium, and this velocity is known as group velocity and is given by this formula. Vg, the group velocity, G for group, V for velocity. Vg is d omega over dk. This is the relation for the group velocity, and here is a relation between the group velocity and the wave velocity. And the relation is this: we know that omega equals to kV. Okay, this is a simple relation between the angular frequency and the propagation constant related with the wave velocity. Okay, where v is the phase velocity or wave velocity. Okay, and we know that Vg equals to d omega over dk. Omega is given by this formula. So d by dk of you can say it as kV because of omega equals to kV. When you differentiate this quantity, this product kV with respect to k, we have that when v is because using Leibniz formula of differentiation in differential calculus, first function as it is, differentiation of second, second function as it is, differentiation of first. Okay, so here is first function is v and second function is k. So v is as it is, differentiation of k, d over dk of k gives you 1, so v is as it is, plus k is as it is and differentiation of v gives you dv over dk, and you know that k is equals to 2 pi by lambda. This is the relation between the propagation constant and the wavelength. Okay, so put the value of k in this relation, k, put on both places the value of k, 2 pi by lambda. So Vg, the group velocity, is equals to v plus value of k, 2 pi by lambda, dv over d, 2 pi by lambda. Okay, v plus 1 over lambda, because 2 pi is cancelled, so here is 1 by lambda, dv is same, and d of 1 by lambda, and d of 1 by lambda gives you minus 1 by lambda square into d lambda. d of 1 by lambda gives you minus 1 by lambda square d lambda. Why? क्योंकि आप पहले डिफरेंशिएट करेंगे 1 by lambda को, तो आपको देगा ये minus 1 by lambda स्क्वायर। जैसे आप डिफरेंशिएट करें 1 by x का, तो आपको मिलेगा minus 1 by x स्क्वायर। और चूंकि d by d lambda यहाँ नहीं है, तो d lambda यहाँ आ जाएगा, यानी d by d lambda इस फंक्शन का आप करेंगे तो 1 minus lambda स्क्वायर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d lambda। यानी आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि d lambda को अगर आप यहाँ लेके जाएं, इस d के डिनोमिनेटर में लेके जाएं, तो आप एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, d by d lambda और 1 by lambda, इस d lambda को आप यहाँ d के डिनोमिनेटर में देके जाएं, तो ये फंक्शन बनता है d by d lambda of 1 by lambda, which is minus 1 by lambda square, which is minus 1 by lambda square. Okay, so d of 1 by lambda gives you minus 1 by lambda square into d lambda, और जब आप d of 1 lambda की ये वैल्यू जो है minus 1 by lambda square d lambda यहाँ पुट करते हैं, तो जो फंक्शन आता है, जो vg की वैल्यू आती है, तो देती है v माइनस लैम्डा, क्योंकि एक लैम्डा से ये लैम्डा की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा लैम्डा, इस माइनस की वजह से ये प्लस साइन हो जाएगा माइनस, और यहाँ बचेगा हमारे पास dv by d lambda. So this is the relation between the group velocity and the wave velocity. This is the relation, and this is all about this unit. This is all about this unit. Now we have completed 4 units in this paper number 3rd of your syllabus, waves, oscillation and acoustics. Unit number 1st, wave motion. Unit number 2nd, simple harmonic motion. Unit number 3rd is damped harmonic oscillator.
और damped harmonic motion, and unit number 4th the forced harmonic oscillations और forced harmonic motion। इस तरह से हम इस सिलेबस में अभी तक 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और इस सिलेबस में अभी आपके पास केवल एक यूनिट और बची है, वो है अकाउस्टिक्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड अकाउस्टिक्स। ओके, उस यूनिट को एनी हाउ हम कंप्लीट कर देंगे और इस तरह से इस पेपर का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जो और अगर संभावना बचती है तो हम दूसरे पेपर की तरफ भी जा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम आपकी 5th यूनिट दैट इज द अकाउस्टिक वो शुरू करने वाले हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।